Dear students, as far as the numerical point of view are concerned, we are taking here the numericals of motion from H.C. Verma book. The question 1 is a car moves due S due and then 25 meter due west. Question is, what is the distance covered by the time and what is its displacement? Now, for the solution, we must take one reference point, that is A, and from A that we go to the east, that is 100 meter. Then after, we travel from B to C, that is we have to go west, that is 25 meter. As far as its direction are concerned, everybody knows that this is north, this is south, this is east, and this is west. According to that, we have to do these things. Now, the distance equal to total distance, that is AB, and then come to C point, that is BC. AB plus BC, that is 125 meters. And the displacement is, the total distance is AB. Displacement is, the definition of displacement is the distance, difference between the final and the initial point. And its displacement will be AB and minus BC. So AB is 100 meter, then BC is 25 meter. That is 75 meter, and this 75 meter we will have to put this direction also, 75 meter due east. Its displacement is 75 meter due east. Why? Because from A we gone to B, that is 100 meter, then we come to C, that is 25 meter. So its this displacement is 75 meter. But as far as the direction are concerned, its direction is towards east. Okay? So thank you for that. Answer this. Now for the second question, a person walks along the sides of a square field. एक पर्सन स्क्वायर फील्ड के चारों तरफ मूव कर रहा है. आप स्क्वायर फील्ड बना लो. दैट स्क्वायर फील्ड इज, दिस इज स्क्वायर फील्ड. नेम इट ए बी सी एंड डी. ईच साइड इज 100 मीटर लॉन्ग. दैट ईच साइड ए बी 100 मीटर, बी सी 100 मीटर, CD 100 meter and DA 100 meter. What is the maximum displacement of the person in any time interval? In this question, we will have to find out the maximum displacement. Dear students, on this square field, what is the maximum displacement? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को आप ढूंढिए कि क्या होगा, देन आप मैग्नीट्यूड उसका निकालिएगा. तो देखिए, स्क्वायर फील्ड पर जब भी आप चलोगे तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच अगर कोई पर्सन होगा, कहीं भी होगा, तो उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, एक डिस्प्लेसमेंट ये भी हो सकता है, ए पर एक पर्सन हो, बी पर एक पर्सन हो, ये भी एक डिस्प्लेसमेंट हो सकता है. सिमिलरली बी पर हो, सी पर हो, ये भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है. सी पर हो, डी पर हो, ये भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है. बट क्वेश्चन इज टेलिंग मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो ये 100 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो सकता है अगर दो पर्सन वैसा रहे तो. लेकिन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और भी है, और वो दोनों हमारा, दैट इज डायगोनल, आइदर एसी और बीडी. ये हमारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा. अब आप AC निकाल लो. AC, the maximum displacement that is AC.
and AC equal to in right angle triangle that is a square field है, आप ऐसा देखो AC equal to in triangle ABC AC equal to root under AB square plus BC square. So what is that? AB means 100 square plus 100 square, and here 1230 plus 1230, one more zero, that is 21230. 4. Now 2 2 4, then what we will have to do? 2 into 100 into 100, that is 100 root 2 meter answer. Away. Now next question is, in the hare tortoise race, the hare ran for 2 minutes at a speed of 7.5 km per hour. Then he slept for 56 minutes and again ran for 2 minutes at the rate of 7.5 km per hour. Find the average speed of the hare in the race. आप लोग कछुआ और खरहा का कहानी सुने होंगे, वही क्वेश्चन में आ रहा है। इसमें क्या है कि खरहा जो है वो 2 मिनट चलता है, स्पीड है 7.5 किलोमीटर पर आवर, फिर 56 मिनट सो जाता है, उसको घमंड होता है कि हम तो बहुत तेज चलते हैं, और फिर 2 मिनट चलता है अगेन 7.5 किलोमीटर पर आवर से, तो इसका एवरेज स्पीड निकालना है। देखिए इसमें 3 सेगमेंट में आपको काम कर देना है, बहुत आसानी से है। पहला सेगमेंट है कि डिस्टेंस निकालना है 2 मिनट्स 7.5 किलोमीटर पर आवर से। सेकेंड सेगमेंट 56 मिनट सो गया, छोड़ देना है स्थिरता से। थर्ड सेगमेंट अगेन डिस्टेंस निकालना है, और देन आफ्टर एवरेज स्पीड के फार्मूले में पुट करके आप वैल्यू निकाल लो। नाउ कम हियर, व्हाट इज दैट? दैट इज स्पीड इक्वल टू 7.5 किलोमीटर पर आवर, टाइम इक्वल टू 2 मिनट, that is 2/60 hour. So distance equal to a speed into time. Now a speed is 7.5 into time is 2/60 hour. That is, आप इसको 10 करो, इसको खत्म करो, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, that is 1/4 किलोमीटर। Now ये फर्स्ट सेगमेंट हुआ। सेकेंड सेगमेंट हुआ टाइम slept for 56 minutes. Again स्पीड हमारे पास है 7.5 किलोमीटर पर आवर, टाइम है हमारे पास 2 मिनट, दैट इज 2/60 hour, and again distance equal to speed into time equal to 7.5 into 2/60। फिर आपको सेम सॉल्यूशन मिलेगा 2, that is 2, यानी 1/4 किलोमीटर। नाउ अब आप यहां पे निकाल सकते हो, टोटल डिस्टेंस आप ले लो
total distance equal to 1 by 4 plus 1 by 4, that is 1 plus 1 by 4, that is 2 by 4, yani 1 by 2 kilometer. And here is total time equal to 2 minutes plus 56 minutes plus 2 minutes. That should be 60 minutes equal to 1 hour. Now average speed equal to total distance upon total time. That is, total distance is 1 by 2 kilometer and total time is 1 hour, then 1 by 2 kilometer per hour, that should be 0.5 kilometer per hour. This is the answer for that. Dear students, our next question is, a bus takes 8 hours to cover a distance of 320 km. What is the average speed of the bus? Here it is a very flat question. No conditions, no time intervals, no phases are there. Simple average distance, average speed we will have to find out. So what is the formula of average speed? So average speed equal to total distance, that is 320 km, means distance upon time, that should be 320 upon 8 fours are, and that is 40 km per hour. So our next question is, the maximum speed of a train is 80 km per hour. It takes 10 hours to cover a distance of 400 km. Find the ratio. Now see the question. Find the ratio of maximum speed to its average speed. Firstly, we will write down here maximum speed of a train equal to 80 km per hour. Now, next, to cover, we will have to find out the average speed, and that is 40 and 400 km, and here 10 hours. Means, for next, time equal to 10 hour and distance, that is 400 km. That is average speed equal to distance upon time. That is 400 upon 10 should be 40 km per hour. हमें एवरेज स्पीड मिल गया, मैक्सिमम स्पीड हमारे पास है. अब क्या करना है? रेशियो मीन्स मैक्सिमम स्पीड अपॉन एवरेज स्पीड, दैट शुड बी 80 by 14, that is 2, means 2:1. This is the answer. There. Our next question is,
an object moves through 10 meter in 2 minutes and next 10 meter in 3 minutes. मीन्स एक ऑब्जेक्ट 2 मिनट में 10 मीटर जाता है, फिर अगले 3 मिनट में 10 मीटर जाता है, तो उसका एवरेज स्पीड निकालिए। तो एवरेज स्पीड के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस लेंगे। व्हाट इज द डिस्टेंस? इज दैट इज टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 10 मीटर plus 10 meter, that should be 20 meter. ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर है, और टोटल टाइम इक्वल टू 2 मिनट प्लस 3 मिनट, that is 5 minute. Okay. Now, average speed equal to total distance upon total time. That is, total distance is 20 meter, so we must put here 20 meter. Then this is 5 minute, consider it out 4, that is 4 meter per minute. This is the answer. Thank you. Dear students, the next question is, a car moves through 20 km at a speed of 40 km per hour and the next 20 km at a speed of 60 km per hour. Calculate its average speed. In this question, a question is in two segments. First segment is distance 20 km, speed is 40 km per hour. So we will have to find out the time taken to cover 20 km at the rate of 40 km per hour. यानी 20 किलोमीटर कवर करने में कितना समय लगा 40 किलोमीटर पर आवर के रेट से, तो टाइम निकाल लेंगे। नेक्स्ट सेकेंड सेगमेंट में हम क्या करेंगे कि फिर 20 किलोमीटर कवर किया है इन्होंने और वो 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, इसमें भी हम टाइम निकालेंगे और निकालने के बाद टोटल डिस्टेंस हम जोड़ लेंगे। टोटल डिस्टेंस है हमारे पास, और अभी जो हमने टाइम निकाला है 2 टाइम, वो दोनों टाइम को ऐड करेंगे और उसको ऐड करने के बाद फिर हम एवरेज स्पीड के फार्मूला को पुट अप कर देंगे और हमारा एवरेज स्पीड निकल जाएगा। सो फॉर द फर्स्ट केस, दैट इज फॉर द फर्स्ट केस, distance equal to 20 kilometer and speed equal to 40 kilometer per hour. So time equal to distance upon speed, and that should be, distance is 20, speed is 40, to that is 1/2 hour. For the second case, again distance equal to 20 kilometer, speed equal to 60 kilometer per hour. So time equal to distance upon speed, and that should equal to 20 upon 60, that is 3, yani 1/3 hour. So total distance, now we find out total distance, that is 20 plus 20, that is 40 kilometer, and total time equal to 1/2 plus 1/3, that is 6, 3 plus 2,
that is 5/6 hour. Now you will have to find out the average speed. Average speed that should equal to total distance upon total time. That is, total distance is 40 km, total time is 5/6 hours, that is 40 into 6 upon 5, 5 8s are 40, that is 48 km per hour. This is the answer for the 7th questions. Dear students, our next question is, a boy leaves his house at 9:30 AM for his school. एक लड़का 9:30 AM में घर से स्कूल के लिए चलता है और स्कूल 2 किलोमीटर दूर है और उसका क्लास 10 बजे शुरू होता है। क्वेश्चन को समझ लीजिए। 9:30 में घर से चलता है, स्कूल 2 किलोमीटर दूर है और क्लास लगना है 10 बजे। वो क्या करता है कि पहला किलोमीटर, फर्स्ट किलोमीटर जो है 1 किलोमीटर, क्योंकि 2 किलोमीटर दूर है तो पहला किलोमीटर जो है वो 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है। अब क्वेश्चन उठता है कि क्वेश्चन आपसे कर रहा है कि किस स्पीड से वो अगला 1 किलोमीटर चलेगा जो कि सही टाइम पर पहुंच जाएगा। ये क्वेश्चन है। तो इसको 2 फेज में आप डिवाइड कर लो। देखो 30 मिनट में 10 आवर्स जो है और 9:30 आवर्स जो है, इसको अगर आप करोगे तो 30 मिनट्स का गैप है। पहला आप क्या करो कि 1 किलोमीटर जो है एक एक फेज में 1 किलोमीटर 3 किलोमीटर पर आवर के रेट से चलने में कितना टाइम लगता है वो आप निकालो। सो फर्स्ट केस आप ले लो कि डिस्टेंस जो हो गया, दैट डिस्टेंस इक्वल टू 1 किलोमीटर एंड स्पीड इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। सो टाइम कितना उसको लगेगा, दैट शुड बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड एंड इक्वल टू 1/3 आवर। अब इसको आप क्या करो कि 1/3 को आप 60 करो, को मिनट में कन्वर्ट करो, क्योंकि हमें मिनट में यहां चाहिए 20 मिनट, यानी 20 मिनट उसको लग गया पहला 1 किलोमीटर चलने में। अब क्वेश्चन करता है कि उसके पास 1 किलोमीटर और जाना है और 10 मिनट टाइम बचा हुआ है, तो स्पीड क्या होगा, है ना? एट व्हाट स्पीड, वो किस स्पीड से चले कि अपना सही समय पर पहुंचे। तो सेकेंड केस में देखो, सेकेंड केस आप बना लो एक तरह से। इसमें क्या है कि डिस्टेंस आपको मिला हुआ है 1 किलोमीटर, टाइम कितना है, टाइम है दैट इज रेस्ट टाइम, टाइम जो बचा हुआ है वो कितना है, रेस्ट टाइम दैट इज 30 में से 20, दैट इज 10 मिनट उसको बचा हुआ है, 10 मिनट में ही उसको चलना है। तो किस स्पीड से चलेगा, इसका मतलब उसके पास टाइम बचा हुआ है 10 मिनट, और इसको आप ऐसे भी कर सकते हो 10/60 आवर आप बना दो। अब ये स्पीड आप निकालो तो डिस्टेंस बाय टाइम दैट शुड बी 1/10/60, so equal to 60/10, that is 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसको चलना पड़ेगा, जो बचे हुए 10 मिनट में वो 1 किलोमीटर कवर कर दे। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ए बस मूव्स एट यूनिफॉर्म स्पीड v1 for some time, then with uniform speed of v2। एक बस है जो कुछ समय तक v1 यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है, उसके बाद उसका स्पीड v2 हो जाता है, वो भी यूनिफॉर्म है, v2
यूनिफॉर्म है। अब आपको कह रहा है कि प्लॉट द डिस्टेंस टाइम टेबल इज गिवन बिलो। ये डिस्टेंस टाइम टेबल दिया हुआ है। प्लॉट द करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना दीजिए और कुछ क्वेश्चंस का आंसर दे दीजिए। देखिए इसमें सबसे बड़ी बात कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको बनाना है। अगर क्वेश्चन बुक में देता तो उसमें बहुत कीन आइज लगाना पड़ता, क्योंकि एक क्वेश्चन इसमें पूछ रहेगा, वो मैं जब आऊंगा तो आपको बता दूंगा। पहला बोल रहा है कि वैल्यू V1 और V2 का निकालिए। ठीक है, ध्यान से टाइम इंटरवल, टाइम को मिनट में लिया है, डिस्टेंस को किलोमीटर में लिया। 0 पर 0 किलोमीटर है, 20 मिनट्स में 20 किलोमीटर कवरिंग है, 40 मिनट्स में 40 किलोमीटर कवरिंग है। मीन्स ये जो ग्राफ हुआ यहाँ तक 20 किलोमीटर ये एंड 20 ये यहाँ तक एक कंप्लीट यूनिफॉर्म है, V1 है, इसको मान लीजिए V1। और उसके बाद 60 में 65 हुआ और यहां से भी यूनिफॉर्म है। देखिए एक इस प्लॉट से यूनिफॉर्म है, एक यहां से ये यूनिफॉर्म है, यहां भी 90, देखिए 95 में से 60 में 65 हुआ, 60 मिनट में 80 मिनट्स में 95 हुआ किलोमीटर एंड सो ऑन। इसमें से 95 से 65 अगर आप माइनस करोगे तो 30 किलोमीटर होता है। 125 से 95 माइनस किया अगेन 30 किलोमीटर। 155 से 125 माइनस आप करोगे अगेन 30 किलोमीटर। तो ये भी यूनिफॉर्म स्पीड दैट इज V2 है। अब क्वेश्चन आपसे पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ V1 एंड V2। देखिए फॉर वैल्यू यहां से यहां तक ध्यान दीजिए, ज्यादा मैंने जो ग्राफ बनाया है उसको ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां से थोड़ा सा हल्का स्लिप जो है स्टिप होगा, क्योंकि इतना दूर में कंप्लीट यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी। इसके बाद फिर यूनिफॉर्म होगा, स्ट्रेट हो जाएगा। यहां से कंप्लीट यूनिफॉर्म, यहां से थोड़ा सा ये आपको हल्का स्टिप होगा ग्राफ। अब आप V1 का वैल्यू निकालिए। देखिए V1 जो है वो वैल्यू आप निकालेंगे तो वो वैल्यू आपका आएगा, दैट इज V1 का वैल्यू जो है वो स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना है, देखिए ये 0 में 0 था, 20 मिनट में 20 किलोमीटर, तो 20 और फिर आपको 40 मिनट्स में 40 किलोमीटर, दैट इज 40 में से भी 20 घटाइएगा 20 होगा, 40 में से यहाँ भी टाइम घटाइएगा 20 होगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आपको हो गया 20 और टाइम हो गया 20, लेकिन ये मिनट में है इसलिए इसको आवर में आप बना लीजिए। दैट शुड बी 20 अपॉन 20 इंटू 60, ये कट जाएगा, दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया V1 का वैल्यू। अब V2 में आइए। V2 होगा, V2 का वैल्यू होगा d/t। देखिए V2 में आप क्या करिए, कंप्लीट जहां से आपको डिस्टेंस दे रहे हैं यहां से यहां पर आइए, मीन 60 मिनट में 65 किलोमीटर, 80 मिनट्स में 95 किलोमीटर, 100 में 125 किलोमीटर, किसी एक को ले लीजिए। 95 में से 65 लीजिए 30 किलोमीटर, ऐसे ले लीजिए, तो डिस्टेंस हमारा 30 किलोमीटर हो गया। और जो यहाँ टाइम है वो भी 20 मिनट्स ही है, टाइम बिल्कुल यूनिफॉर्म है, टाइम में डिस्टर्बेंस नहीं है। तो 20/60 मैंने बनाया 30/20 इंटू 60, दैट इज 3 यानी 90 किलोमीटर पर आवर। पहला क्वेश्चन हमारा हो गया, ये हमारा हो गया। अब दूसरा आप देखो, when did the bus change its speed? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये स्पीड कब चेंज करता है, तो मैंने आपको बीच में बोला था कि अगर ग्राफ वो खुद से बना के देता बुक, तो निश्चित तौर पर जो आपका ग्राफ था
उस पर आसानी से टाइम पता कर चलते, क्योंकि टाइम एक्सिस पर हम परपेंडिकुलर डालते, डिस्टेंस एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल के हम बिल्कुल ही श्योर हो लेते कि किस समय हो रहा है। बट यहाँ पर आपने वैल्यू जो निकाला है, आपने जो ग्राफ निकाला है, इस समय यानी 40 और 60 के बीच जो है वो चेंज हो रहा है स्पीड। तो ऐसा स्पीड निकालने के लिए दोनों का एवरेज वैल्यू निकालिएगा। When did the bus change its speed? तो टाइम के लिए इसमें निकालिएगा, एवरेज वैल्यू क्या होगा, 40 प्लस 60 अपॉन 2 दैट इज 100/2, यानी 15 मिनट जो इसका वैल्यू होगा 15 मिनट, यही वो एवरेज वैल्यू होगा, ये वैल्यू होगा जब स्पीड जो है वो बस चेंज करेगा स्पीड को। अब सेकेंड क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन की ओर जरा चलें। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन द फर्स्ट आवर? बहुत आसानी है। देखिए फर्स्ट आवर में डिस्टेंस कवरिंग कितना है, 65 किलोमीटर। यहाँ भी आप देख लीजिए ये 65 किलोमीटर है। तो बहुत आसानी से सी का भी आंसर आप लिख दीजिएगा, दैट इज डिस्टेंस इक्वल टू 65 किलोमीटर। हो गया। डी में आइए, डी कितना है, सी भी हो गया। डी होगा व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर द कंप्लीट। नहीं, मैंने एक क्वेश्चन शायद छोड़ दिया है, एक क्वेश्चन हाँ छोड़ दिया है। डी है व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड इन द सेकेंड। ये हमारा आप जान लीजिए कि ये हमारा क्वेश्चन नंबर ई है। क्वेश्चन नंबर डी है कि व्हाट इज द डिस्टेंस कवर, मींस डिस्टेंस कवर in the second hour. Dear students, ये सी के बाद आप डी पर आइएगा काइंडली। मीन्स व्हाट इज द डिस्टेंस कवरिंग द सेकेंड आवर। सेकेंड आवर में दूसरे घंटे में कितना डिस्टेंस कवरिंग है, देखिए तो पहले घंटे में कवरिंग ये ग्राफ पर भी आ रहा है 65 किलोमीटर, दूसरे घंटे में कवरिंग हो रही है पूरा 155 किलोमीटर। तो अगले एक घंटे में क्या कवरिंग हुई, डिस्टेंस कवर दैट शुड बी टोटल डिस्टेंस दैट इज 155 किलोमीटर। इसमें से आप माइनस करिएगा दैट इज 65 किलोमीटर को आप माइनस कर दीजिएगा, तो आई थिंक ये 90 किलोमीटर आएगा। ये आपका डिस्टेंस कवरिंग हुआ सेकेंड आवर में, यानी पहले घंटे में जो डिस्टेंस कवरिंग होगा वो हमारा 60 किलोमीटर आएगा, दूसरे घंटे में जो डिस्टेंस कवरिंग होगा वो हमारा 90 किलोमीटर आएगा। अब देखिए अब हमको एवरेज स्पीड टोटल जर्नी का यानी ई जो है ई पर अब आइए कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर द कंप्लीट जर्नी और इंटायर जर्नी, दैट इज एवरेज स्पीड होगा, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दैट शुड बी टोटल डिस्टेंस हमारे पास है 65 किलोमीटर। सॉरी हमने यहाँ पर 65 किलोमीटर ये दिया, ये नॉट 60 किलोमीटर, ये 65 किलोमीटर है, 65 किलोमीटर एंड एक 90 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम हमारे पास कितना है, तो 2 आवर है, दैट इज 2 आवर। ये होगा 155 किलोमीटर बाई 2 आवर, ये होगा 177.5 किलोमीटर पर आवर ये हमारा होगा। देखिए एक बार फिर अगर इसको रिकैप करिए तो ज्यादा बेहतर है। देखिए एक बस चल रही है और कुछ समय तक उसका टाइम स्पीड v1 है, यूनिफॉर्म स्पीड है, कुछ समय के बाद उसका यूनिफॉर्म स्पीड v2 हो जाता है। ग्राफ हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है, क्वेश्चन कहता है ग्राफ खींच लीजिए, आप ग्राफ आराम से खींच लीजिए और तो क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन देखिए पहला वैल्यू ऑफ v1 एंड v2
तो वैल्यू V1 में आपको क्या करना है कि V1 हमारा जो है यूनिफॉर्म स्पीड यहाँ इस 40 टाइम तक था, मिनट तक था, तो यहाँ किसी एक में आप जो है V1 निकाल लीजिए, दैट इज 520 अपॉन 60 आप कर लीजिए, तो वो मिनट में दिया हुआ है और यहाँ करिएगा तो 60 किलोमीटर पर आवर आएगा। दूसरा V2 में होगा, दैट इज 30 किलोमीटर है, इन सक्सेसिव आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हमारा टोटल हमारे पास आएगा ये 90 किलोमीटर पर आवर है। पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होगा। दूसरा है चेंज इन द स्पीड होगा, तो चेंज इन स्पीड जो होगा ग्राफ पर एग्जैक्ट टाइमिंग हमारे पास नहीं है, इसलिए जो ग्राफ खींचे हैं ये दो टाइम का एवरेज जो होगा वही एवरेज टाइम जो होगा वो स्पीड चेंजिंग का होगा, दैट इज 40 प्लस 60 अपॉन 2, दैट इज 50 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर सी में है कि टोटल डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस कवर्ड पहले घंटे में कितना होगा, तो आप यहां से भी देखिएगा पहले घंटे में 65 किलोमीटर, ग्राफ पर भी आप देखिए 65 किलोमीटर होगा, तो यहाँ भी आप 65 किलोमीटर लिख दीजिए। फोर्थ क्वेश्चन हमने यहाँ लिखा है डिस्टेंस कवर्ड इन द सेकेंड आवर। सेकेंड आवर में डिस्टेंस कवर होगा वो 2 घंटे में 155 है, लेकिन पहले घंटे में 65 होगा, तो आप क्या करिए कि 155 से 65 को माइनस कर लीजिए, दैट इज 90 किलोमीटर होगा। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर होगा। उसके बाद जो है वो हमारे पास ई क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर द कंप्लीट जर्नी। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास होता है, दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस वाज देयर फर्स्ट 65 किलोमीटर एंड 90 किलोमीटर आप ऐड कर दीजिए। टोटल टाइम हमारे पास 120 मिनट्स है, दैट इज 2 आवर्स है, तो 2 आवर कर दिया, 155 by 2 दैट इज 77.5 किलोमीटर पर आवर। भैया Dear students, now the next question is a bicycle increases its velocity from 10 km per hour to 15 km per hour in 6 seconds. Calculate its acceleration. Dear students, you see here the speed or where the velocity is first 10 km per hour means initial velocity is there. So you write down initial velocity, that is u बराबर 10 km per hour, and from initial speed 10 km per hour to 15 km per hour, that is v, that is final speed, then 15 km per hour, and the time taken is t equal to 6 seconds. Here the speed is kilometer per hour, we will have to change the time into hour so that we will do our problem in a better way. Now t equal to 6 second, you divide by 60, that comes in minute, and again 60, that is in hour, so this is hour. Don't calculate here, leave it. Now the formula for acceleration, a equal to rate change in velocity, that is v minus u upon t. So a equal to 15 minus 10 upon, in place of t, that is 6 into 60 into 60, that is 5 by 6 into 60 into 60, that is here 10, so 6 5 are 30, that is kilometer per hour square. So we got here the acceleration is 3000 kilometer per hour square. Thank you, students.